Hello students, how are you all? I hope you are fit and fine at your home. Dear students, today we are going to study history and civics of standard 7. Okay students, first of all I would like to congratulate you all that you are in the 7th standard now. And I know that you are very curious to learn the subjects of 7th standard. So here we are going to study history and civics in an interesting manner. Are you ready? Very good. So without further ado, let's start with the subject, that is history and civics. Student, in the 7th standard we are going to study the history of medieval period. So here it is very important to understand what is medieval period. Then we will move forward. Okay students? Before moving forward, I would like to say thanks to my subscribers, those who have shared it, liked it, commented below the video. Thank you students, thank you parents, and be connected with me to learn more and more interesting and informative things. Student, I will give you some extra knowledge so that you can understand the historical concepts in a well manner and you will not forget anything. So this video is going to very interesting as well as informative. So be connect with me. So student, first of all, let me tell you what is medieval period, because the first chapter of history and civics of the 7th standard is the sources of history and it is belonged to the history of medieval period. Student, medieval period means it is related to the Middle Ages. Okay students, so you have understood now what is medieval period. Now let's start with the first chapter of the history and civics 7th standard. The first chapter is the sources of history. So let's start. Students, first of all I will read it for you and then I will explain it to you. Yes student, I am reading here for you because reading is very important to understand. So you too read first loudly and then read in mind and then you can understand it properly. Okay, so I will read it for you. Lesson number 1, sources of history. We studied ancient Indian history last year. This year we are going to study the medieval period of Indian history. Broadly, the period from the 9th century CE till the end of 18th century CE is considered to be medieval period of Indian history. In this lesson, we are going to study the sources of medieval history. Yes student, you know that last year we have studied ancient period or history of ancient period. Students, we know that last year we have studied the ancient Indian history. Yes, do you remember anything? If you remember, you can type your answer in the comment box. Student, here in the last year we have studied the ancient states in the north, okay, the ancient kingdoms in the south, as well as we have studied the Janapadas and Mahajanpadas. Okay, yes. So in the last year we have studied the ancient history, but now this year in the 7th standard we are going to study the medieval period or the history of medieval period. The medieval period starts from the 9th century CE till the end of 18th century in India. Okay student, so here we have to study the Indian history, so we need to understand the medieval period. It starts from the 9th century and it ends with the 18th century in India. Okay student, have understood? And in this chapter we are going to study the sources of history. Students, हमने लास्ट ईयर पढ़ा है एशियंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास हमने पढ़ा था. प्राचीन भारत का इतिहास में हमने पढ़ा है जनपदाज, महाजनपदाज, उत्तर भारत के राज्य, दक्षिण भारत के राज्य, ये सभी चीजें हमने लास्ट ईयर में पढ़े हैं. ठीक है, अब इस साल हमें क्या पढ़ना है? मध्य भारत का इतिहास. उसे हम मध्ययुगीन भारत का इतिहास ऐसा कहेंगे. और उसमें हमें क्या पढ़ना है कि हिस्ट्री के साधन और हिस्ट्री के स्रोत हमें पढ़ना है. जब हम हिस्ट्री लिखते हैं, इतिहास हम लिखते हैं, तो किस साधनों का आधार लेके हम इतिहास लिखते हैं, किस स्रोत का इस्तेमाल करके हम इतिहास लिखते हैं, वो स्रोत हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. तो आगे बढ़ते हैं. हिस्ट्री गिव्स अस अ क्रोनोलॉजिकल, साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक अकाउंट ऑफ पास्ट इवेंट. यस फ्रेंड, आपको पता है व्हाट इज मीन बाय हिस्ट्री? हिस्ट्री इज अ क्रोनोलॉजिकल, साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक अकाउंट ऑफ पास्ट इवेंट. हमें पता है कि हिस्ट्री यानी कि क्या? इतिहास यानी कि
भूतकाल की घटनाओं का विवरण। इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं? विविध जो घटनाएं घटी है उसका कालक्रम हम पढ़ते हैं, है ना। उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किस तरीके से उसकी रचना की है वो हम पढ़ते हैं। उसके साथ साथ हम वो एक घटनाएं किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है वो भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। 4 factors are very important from the viewpoint of history. They are individuals, society, place, and time. History must be based on authentic evidence or proofs. These proofs are known as the sources of history. Students, यहाँ पे क्या कहा गया है कि from the viewpoint of history, 4 factors are very important in हिस्ट्री। इतिहास के दृष्टिकोण से 4 घटक बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन से वो 4 महत्वपूर्ण घटक है? इंडिविजुअल यानी कि व्यक्ति, सोसाइटी यानी कि समाज, प्लेस यानी कि जगह, और टाइम यानी कि वक्त। तो व्यक्ति, समाज, स्थल और काल, ये 4 घटक बहुत ही महत्वपूर्ण है इतिहास के दृष्टिकोण से। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं ये 4 घटक किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल यानी कि व्यक्ति। फॉर एग्जाम्पल इन महाराष्ट्र और इन इंडिया छत्रपति शिवाजी महाराज इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उनके बारे में बहुत ज़्यादा इतिहास में हमें जानकारी मिलती है। यानी कि इतिहास में एक घटक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वह यानी कि व्यक्ति। फॉर एग्जाम्पल छत्रपति शिवाजी महाराज। देन अगेन फिर छत्रपति शिवाजी महाराज का जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो उन्होंने स्वराज्य निर्माण किया है। तो स्वराज्य निर्माण किसके लिए किया है? लोगों के लिए किया है, यानी कि लोग यानी कि सोसाइटी, है ना। तो समाज, तो दूसरा घटक आ गया सोसाइटी। और तीसरा प्लेस एंड टाइम। तो प्लेस, कहाँ पे स्वराज्य निर्माण किया? महाराष्ट्र में स्वराज्य निर्माण किया, भारत में स्वराज्य निर्माण किया, यानी कि प्लेस। ठीक है, तो तीसरा घटक आ गया प्लेस। और चौथा है शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में कब स्वराज्य निर्माण किया? तो वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, वह है then the period of Shivaji Maharaj was 1630 to 1680. Okay, so this was the period. तो यानी कि टाइम। तो इस दौरान शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापन किया महाराष्ट्र में। तो इस तरीके से ये 4 घटक बहुत महत्वपूर्ण है, व्यक्ति, समाज, स्थल और काल। ओके स्टूडेंट, हैव यू अंडरस्टूड? वेरी गुड। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। इतिहास को विश्वसनीय प्रमाणों के ऊपर आधारित होना चाहिए। इतिहास को विश्वसनीय सबूतों के आधार पर होना चाहिए। इतिहास को विश्वसनीय सबूतों के आधार पर होना चाहिए। इट शुड बी डिपेंड ऑन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द एविडेंसेस एंड प्रूफ्स, एंड दीज प्रूफ्स आर कॉल्ड एज सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ओके स्टूडेंट, समझ में आया किसे हम सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री और किसे हम इतिहास के स्रोत कहते हैं? जो स्रोत विश्वसनीय है, ऑथेंटिक है, उसे हम इतिहास के स्रोत कहते हैं। हिस्ट्री मस्ट बी बेस्ड ऑन द ऑथेंटिक एविडेंसेस ऑफ प्रूफ्स, एंड दीज एविडेंसेस और दीज प्रूफ्स आर कॉल्ड एज सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। ओके स्टूडेंट, हैव अंडरस्टूड? वेरी गुड। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड. Let us classify these sources into material sources, written sources, and oral sources. To learn more about them, let us also evaluate the sources of history. Students, let us classify these sources into 3 types of sources. The first one is material sources, that is भौतिक स्रोत. Second is written sources, उसे हम लिखित स्रोत कहते हैं. और तीसरा है oral sources, यानी कि मौखिक स्रोत. ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? और इसका इवैल्यूएशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका जांच पड़ताल करना इंपॉर्टेंट है. तो किस तरीके से हम उसका जांच पड़ताल कर सकते हैं वो भी हम आगे देखेंगे. वी हैव टू कंसिडर मेनी फैक्टर्स रिलेटेड टू हिस्टोरिकल इवेंट that we want to study. It is necessary to support our study with historical sources. These sources have to be verified. We have to see whether they are authentic. It is necessary to use these sources judicially and only after a critical analysis. Students, we need to consider the related factors of the हिस्ट्री दैट यू आर गोइंग टू स्टडी. जो हिस्ट्री हम पढ़ना चाहते हैं, जिसका हम अध्ययन करना चाहते हैं, उस हिस्ट्री और उस इतिहास के बारे में जो अलग अलग घटक है, उस घटकों का विचार करना बहुत ही ज़रूरी होता है हम जब इतिहास का पठन करते हैं, इतिहास का अध्ययन करते हैं. वी नीड टू टेक हेल्प ऑफ द
सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री इफ यू वांट टू लर्न हिस्ट्री। ओके स्टूडेंट, हमें इतिहास पढ़ते वक्त इतिहास साधनों का उपयोग करना पड़ता है अगर हमें इतिहास का अध्ययन करना है। इट इज नीडेड टू वेरीफाई द हिस्टोरिकल सोर्सेस। हमें इस हिस्टोरिकल सोर्सेस जो है, इतिहास के जो स्रोत है, उसका वेरिफिकेशन यानी कि जांच पड़ताल करना बहुत ही जरूरी होता है। We need to see whether the sources are authentic or not. Students, what do you mean by authentic? कि प्रामाणिकता, है ना, कि जो भी सोर्सेस हमें मिले हैं, जो भी सोर्सेस हम पढ़ने वाले हैं, वो कितने ऑथेंटिक है, कितने सत्य है, कितने रियल है, वो भी हमें देखना पड़ता है। उसके साथ साथ हमें जो भी सोर्सेस मिले हैं, जो भी सोर्सेस हम स्टडी करना चाहते हैं, उनका एनालिसिस करते समय, स्पष्टीकरण करते समय न्यायिक रूप हम उसको कितना देते हैं, वो भी हमें देखना पड़ता है। इन साधनों का विश्लेषणात्मक पद्धति से अर्थ लगाने के बाद और इवैल्यूएशन करने के बाद, मूल्यांकन करने के बाद बहुत ही सूझबूझ की ओर से हमें उसका उपयोग करना चाहिए, बहुत ही न्यायिकता से उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जुडिशियली मीन्स न्यायिकता और सूझबूझ के उसका इस्तेमाल करना। ये स्टूडेंट समझ में आया आपको? वेरी गुड। नाउ स्टूडेंट, वी शैल स्टडी the sources of history one by one. Just now I have told you the classification of sources in three types, that is material sources, written sources and oral sources. Now we shall study the first one, that is material sources. Students, first of all I shall read it for you. Just now I have told you reading is very important, so just read and understand. So let me read for you. Material sources: memorials, buildings, cave sculpture, inscriptions, coins, copper plates and forts. Forts have an important place among material sources. Some major types of forts are hill forts, forest forts, sea forts and forts on the plains. Monuments include samadhis, graves, virgala, and buildings include palaces, ministerial mansions, queen's quarters, ranivasa, and also houses of common people. They all provide insights about that period. Looking at them, we come to know about the development of architecture, the economic conditions, the quality of art, style of building construction, and people's standard of living in that particular period. Yes student, have you listened to it carefully? Very good. Students, forts यानी कि किला, memorials यानी कि स्मारक, buildings यानी कि इमारत, then cave sculpture यानी कि गुफाओं के शिल्पकला, गुफाओं में जो शिल्पकला है उसे हम केव स्कल्पचर कहेंगे। देन इंस्क्रिप्शंस मीन्स शिलालेख, कॉइन्स यानी कि सिक्के, कॉपर प्लेट्स यानी कि ताम्रपत्र। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सभी जो वस्तुओं और भवनों और उनके अवशेष जो है, इतिहास के भौतिक स्रोत अथवा इतिहास के भौतिक साधन हम उन्हें कहेंगे। तो इन इतिहास के भौतिक स्रोत में सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जो साधन है वह है किला। द फोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ रिलायबल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। सम मेजर टाइप्स ऑफ फोर्ट्स आर देयर। स्टूडेंट्स, इस फोर्ट्स के, किलों के कुछ मेजर, किलों के कुछ महत्वपूर्ण वर्ग है और भेद है। ठीक है, वह भेद है, द टाइप्स ऑफ फोर्ट्स आर हिल फोर्ट्स यानी कि गिरी दुर्ग, यानी कि माउंटेन के ऊपर, हिल के ऊपर जो किले हैं उसे हम गिरी दुर्ग और हिल फोर्ट्स कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। फॉरेस्ट फोर्ट्स यानी कि वन दुर्ग, यानी कि जंगल में जो किले हैं उसे हम फॉरेस्ट फोर्ट्स कहेंगे। द नेक्स्ट वन इज सी फोर्ट्स। सी फोर्ट्स यानी कि जल दुर्ग, फॉर एग्जाम्पल जंजीरा फोर्ट। ओके स्टूडेंट, सो जंजीरा फोर्ट इज कंप्लीटली इन सी। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज सी फोर्ट और जल दुर्ग। एंड द नेक्स्ट वन इज फोर्ट्स ऑन प्लेन, यानी कि पठार के ऊपर, प्लेन जमीन के ऊपर जो किले हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? फोर्ट्स ऑन प्लेन। हम उसे जमीनी किला कहेंगे और उसे भूईकोट किला भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? सो यह थे किलों के कुछ मुख्य प्रकार। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा किले हैं, हमें पता है। रायगढ़ किला, शिवनेरी किला, तोरना, पन्नाड़गढ़। ठीक है स्टूडेंट, ये सभी महत्वपूर्ण किले हैं जो हमें हिल के ऊपर दिखाई देते हैं, उसे हम गिरी दुर्ग भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? वेरी गुड। नाउ वी विल स्टडी द नेक्स्ट वन। सो वी हैव स्टडीड अबाउट फोर्ट्स नाउ इन शॉर्ट। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द मोन्यूमेंट्स, दैट इज स्मारक। उसे हम क्या कहेंगे? स्मारक।
तो स्मारक में कौन सी चीजें और स्रोत इंक्लूड होते हैं, तो देखते हैं क्या क्या उनमें इंक्लूड होता है। मोन्यूमेंट इंक्लूड्स समाधिज, ग्रेव्स, वीर, तो ये सभी चीजें जो है वो मोन्यूमेंट यानी कि स्मारक में इंक्लूड होते हैं। तो उसमें मैंने कहा समाधि, देन ग्रेव यानी कि कब्र, और तीसरे मैंने कहा वीरगाला। ये स्टूडेंट वीरगाला क्या है? व्हाट इज वीरगाला स्टूडेंट? इट इज अ स्टोन दैट इज इरेक्टेड ऑन द ग्रेव ऑफ द मार्टियर्स। ओके स्टूडेंट, मार्टियर्स जो होते हैं, शहीद लोग जो होते हैं, उनके नाम से एक स्टोन खड़ा किया जाता है, स्टोन का निर्माण किया जाता है, उसे हम वीरगाला कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सी इन द पिक्चर यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज वीरगाला। These are the things which are included in monuments. Now we shall study about buildings. Okay student, in buildings, palaces, queen's quarters, ministerial mansions, all these are included in building. Okay student, तो अब हम इमारत के बारे में पढ़ेंगे और इमारत के बारे में हम जानेंगे और भवंस के बारे में जानेंगे। भवंस और इमारत में क्या क्या इंक्लूड है? पैलेसेस यानी कि राजभवन, मिनिस्ट्रियल मैशंस यानी कि मंत्री के भवन, और उसके साथ साथ रानियों का रानीवास यानी कि रानी निवास, जहाँ पे रानियाँ रहती है उसे हम रानीवास कहेंगे और क्वींस क्वार्टर कहेंगे। तो ये सभी चीज़ें बिल्डिंग्स में इंक्लूड होंगे, भवन में इंक्लूड होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको? ऑल दीज मटेरियल सोर्सेस टेल्स अस द इनसाइट्स ऑफ दैट पीरियड। ओके स्टूडेंट, तो ये सभी जो भौतिक स्रोत हैं हमें उस वक्त के बारे में बताते हैं। क्या क्या बताते हैं? लेट मी टेल यू। इट टेल्स अस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर, इट टेल्स अस अबाउट द इकोनॉमिकल कंडीशंस, द क्वालिटी ऑफ आर्ट, द स्टाइल ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस एंड people's standard of living. All these sources tells us about all these things. स्थापत्य कला का विकास कैसे हुआ है वो हमें बताता है, आर्थिक परिस्थिति किस तरीके की थी वह हमें बताता है, कला की गुणवत्ता क्या थी वह हमें बताता है, कला की गुणवत्ता हमें पता चलती है, इमारत और भवन का कंस्ट्रक्शन किस तरीके का है, बांधकाम किस तरीके का है वह भी हमें पता चलता है। उसके साथ साथ हमें लोगों का रहना सहना कैसा था, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या था, उनका जीवन स्तर क्या था, वो भी हमें ये सभी भौतिक साधनों से पता चलता है, भौतिक स्रोतों से हमें पता चलता है। ओके स्टूडेंट, हैव यू अंडरस्टूड? वेरी गुड। सो स्टूडेंट्स, it is all about the material sources, but one more important thing is there, how we could able to understand the history with the help of coins. Yes student, in the last year also we have studied about coins. Yeah, yes, do you remember who had minted the gold coin? If you remember, then you can type your answer in the comment box. I will tell you within few minutes, but you can type your answer in the comment box. Okay students, so how we can understand the history with the help of coins? Yes, आपको पता है कि हमने लास्ट ईयर पिछले साल भी हमने कॉइन्स के बारे में पढ़ा है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि सोने का सिक्का किसने कॉइन किया था, किसने बनाया था, क्या आपको याद है? अगर आपको याद है तो आपका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रीड इट फॉर यू। सिंस एंशिएंट टाइम्स कॉइन्स लाइक कौड़ी, दमड़ी, ढेला, पाई, पैसा, आना and rupee were used. Some local idioms or proverbs are based on coins. For example, एक फुटकी कौड़ी देना नाही. Here फुटकी कौड़ी means the lowest bit of money. The next one, 16 आना सच means 100% correct or 100% true. Okay student, so these are the proverbs that tells us about the money or coins. So in the ancient times, कौड़ी, दमड़ी, ढेला, पाई, पैसे, आना एंड रूपी, दीज कॉइन्स वर यूज्ड। ओके स्टूडेंट्स, इसके बारे में कुछ प्रोवर्ब्स भी प्रचलित है। लेट मी टेल यू द मीनिंग ऑफ इट। एक फुटकी कौड़ी देना नहीं, एक फुटकी कौड़ी देना नहीं। नहीं, इसका मतलब है कि मैं पैसे का छोटे से छोटा बिट भी मैं आपको दूंगा नहीं। ठीक है स्टूडेंट, कौड़ी कहाँ है यहाँ पे? तो कौड़ी का वैल्यूएशन क्या है? रूपी यानी कि 1 रुपये, आना यानी कि 50 पैसे, 1 पैसा यानी कि पैसा। तो पैसे का और एक छोटा भाग है उसे हम कहेंगे पाई, और पाई का और छोटा भाग है ढेला, और ढेले का और छोटा भाग है दमड़ी, और दमड़ी का छोटा भाग है कौड़ी।
ठीक है स्टूडेंट, यानी कि इट इज द लोवेस्ट बीट ऑफ मनी और इट इज द लोवेस्ट बीट ऑफ रूपी। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? तो ये एंशियंट और प्राचीन युग में इसका इस्तेमाल होता था। दूसरा पूर्ववर्ब है 16 आना सच, यानी कि 100% ट्रू, है ना स्टूडेंट। यहाँ पे 16 आना कहा है, 16 यानी कि 16 आना हो गया, है ना। तो मैंने अभी अभी कहा है स्टूडेंट 50 पैसे को 8 आना कहा जाता था। ठीक है, 50 पैसे को 8 आना कहा जाता था, यानी कि 2 50 पैसे यानी कि 1 रुपया, यानी कि 8 आना प्लस 8 आना कितना हुआ? 16 आना। तो ये प्रवर्ब वही से लिया गया है, 16 आना सच, यानी कि 100% ट्रू। यस स्टूडेंट, हैव अंडरस्टूड? वेरी गुड स्टूडेंट्स। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर coins were made by different rulers. Yes, just now I have asked you who had minted gold coin. Yes, in last year we have studied students, हमने last year पढ़ा है कि कुशना किंग्स ने पहली बार भारत में, इंडिया में गोल्ड कॉइन बनाए हैं, सोने के सिक्के बनाए थे। ठीक है, और ये सिक्कों से हमें पता चलता है, राजों का स्टेटस पता चलता है। We can learn about the rulers, we can learn about the kings with the help of coins. For example, we can understand the governors of the rural, यानी कि सरकार किस तरीके की थी वो हमें पता चलता है। रिलीजियस आइडियाज किस तरीके के थे वो भी हमें पता चलता है। एट द सेम टाइम वी कैन अंडरस्टैंड द पर्सनल डिटेल्स ऑफ द किंग विद द हेल्प ऑफ कॉइन्स। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, आर्थिक व्यवहार किस तरीके से होते थे वो भी हमें पता चलता है। इकोनॉमिक कंडीशन यानी कि आर्थिक परिस्थिति वो भी हमें पता चलती है। जो राजा गोल्ड के सिक्के बनाता था उसकी आर्थिक परिस्थिति क्या होगी ये भी हमें समझ में आता है। वी कैन अंडरस्टैंड द रिलीजियस कोऑर्डिनेशन ऑफ दोज डेज फ्रॉम द इमेजेस ऑफ राम सीता ऑन द कॉइन ऑफ एम्परर अकबर एंड द इमेजेस ऑफ शिव पार्वती ऑन द कॉइन ऑफ हैदर अली। यस स्टूडेंट, वी नो अकबर वॉज द मुगल एम्परर, है ना। हमें पता है कि अकबर एक मुगल बादशाह था और उनके कॉइन के ऊपर राम और सीता की इमेज थी। तो उससे हमें पता चलता है कि किस तरीके का रिलीजियस कोऑर्डिनेशन था। उसके साथ साथ मैसूर के सुल्तान हैदर अली, ठीक है, टीपू सुल्तान के पिताजी हैदर अली, उनके कॉइन के ऊपर भी शिव पार्वती का इमेज था, चित्र था। तो उससे हमें पता चलता है कि रिलीजियस धार्मिक भावना किस तरीके से डेवलप और विकसित हुई थी वो भी हमें यहाँ पे पता चलता है। द पेशवाज यूज्ड द अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज ऑन देयर कॉइन्स। यस स्टूडेंट, तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि पेशवाज जो थे, हु वॉज पेशवा स्टूडेंट? यस, डू यू नो? पेशवा वॉज द अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द मराठा एम्पायर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ओके स्टूडेंट, तो एक प्राइम मिनिस्टर थे, जैसे कि शिव छत्रपति शिवाजी महाराज के प्राइम मिनिस्टर पेशवा थे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पेशवा जो थे वो भी अरेबिक लैंग्वेज और पर्शियन लैंग्वेज का इस्तेमाल अपने सिक्कों के ऊपर किया करते थे। जैसे कि हमें पता है बाजीराव पेशवा, है ना स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, दिस इज अबाउट द कॉइन्स। नाउ वी शैल स्टडी अबाउट एन इंस्क्रिप्शन। What do you mean by inscription, students? Do you know what is mean by inscription? If you know, you can type your answer in the comment box. Inscription यानी कि क्या, उसका मतलब आपको पता है स्टूडेंट? Inscription यानी कि शिलालेख। A carving on a stone is known as inscription. पत्थर को काट के और पत्थर को तराश के जो चीजें बनाई जाती है उसे हम शिलालेख कहते हैं। For example, the inscription found in Brihadishwara temple premises in Tanjavur. Yes student, so here we find the oldest inscription in this temple premises. This temple is in South India. This temple is also called as Raja Rajeshwaram. It is a Hindu temple dedicated to Shiva, located in south bank of Kaveri river in Tanjavur of Tamil Nadu. And student, this is one of the largest South Indian temples. It is built by Raja Raja Chola I during the period of 1003 to 1010 AD. Many inscriptions of the period of Chalukya, Rashtrakuta, Chola and Yadava kings have been found. It is considered to be a very important and reliable source of history. It helps us to understand language, script and social life of period. Inscriptions carved on the copper is called as copper plates. Royal edicts
verdicts, etc. are inscribed on the copper plates. स्टूडेंट्स, शिलालेख एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विश्वसनीय स्रोत समझा जाता है। ऐसे शिलालेख चालुक्य, राष्ट्रकूट, यादव, इन शासक कालों के शिलालेख भी हमें प्राप्त हुए हैं। इस शिलालेख से हमें उस वक्त की भाषा, उस वक्त की लिपि के लोगों का रहना सहना, ये हमें पता चलता है। तांबे के ऊपर जो लेख लिखे गए हैं उसे हम ताम्रपट कहते हैं। इन ताम्रपटों के ऊपर राजाओं के आदेश, निर्णय लिखी गए हैं, इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? यस स्टूडेंट, हैव यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स? सो हियर वी हैव स्टडीड व्हाट इज हिस्ट्री, what are the sources of history, the three types of sources of history, and we have studied here the first type, that is the material sources. In material sources, various material sources we have studied. In material sources we have studied forts, monuments, buildings, cave sculpture, inscriptions, coins and copper plates. Okay student, have you understood? Very good students, in the next video we are going to study the written sources and oral sources of history. Okay student, if you want to learn more about it, do not forget to subscribe my channel. If you have liked this video and found it useful to you, then like it, share it to your friends. Do not forget to subscribe and press the bell icon so that you will get current notification of new videos. Thank you. Be connected.